We are going to start our session, day 13 of the book called The Magic, जिसके ऊपर हम पिछले काफी टाइम से सेशंस कर रहे हैं. And we have been doing these sessions every Tuesday. And it was because of Shabana and Mevin, they've given me this opportunity कि मैं आपके साथ इस book के बारे में कुछ share कर पाऊँ, because it's very close to my heart and I've been practicing it, and I've been doing these sessions also of continuously for 30 days where we build up this practice of gratitude. And so Shabana said, why don't you start doing it? So here I am. So we have been doing it for last 12, 13 weeks. We have been practicing gratitude every week. I've been sharing with you a new way to incorporate gratitude in our daily life. So ये हमने करा क्यों? What is the purpose of doing this practice of gratitude? We are at a certain place, but we wanted to reach somewhere else. We wanted a different kind of life. We wanted a much better, health, much better relationships, much better success, and relationship with our own self, career. है ना? So because we want something which is not there right now, how to achieve that? That is where the gratitude practice creates that magic. And that is how Rhonda has built up this book in such a way that whatever we desire and dream of, we can achieve it by practicing gratitude. This book is designed in a way that first 12 chapters, we are paying gratitude for the past and the present. अब हमें पास्ट में तो किसी ने सिखाया नहीं था कि ग्रेटिट्यूड भी देना होता है. हमें सिर्फ मैनर्स सिखाए गए थे कि कुछ दे दे तो थैंक यू बोलना है. Otherwise, we never knew that, whatever we have received in our life, we need to be grateful for that because we are blessed. There are so many people who don't have those things with us, with them. हमारे पास भगवान ने इतना कुछ दिया है. We have a house to live in, we have clothes to wear, we have people to talk to, we have food to eat, we have water to drink, we have air to breathe. Yeah, we have sun to give us energy. इतना कुछ दिया है ना, but we never pay any attention to all these things because we have taken them for granted. ये तो है ही है ना. अब हवा तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें क्या है? बट नहीं मिली जब कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन, तो क्या हाल हुआ था? We all remember that, right? Because whenever we start taking things for granted, that means there is a lack of gratitude. और हमें बचपन से किसी ने सिखाया ही नहीं है ये. तो हमने first 12 chapters में जो हमने last week खत्म किए, we have been giving gratitude for the things we have received in the past and the present. अब आप जब भी कुछ पैसा कहीं से कमाते हैं या कुछ और आपके ऊपर बहुत कर्जे हैं, you have loans to repay, you have EMIs to give. So the first thing you do is you pay that off. And then you start building your corpus. Then you start building, saving money and investing in things and all. पहले आप अपने कर्जे पूरे करते हो ना, because अगर कर्जा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो क्या फायदा ना? आप इधर सेव कर रहे हो, उधर उसका कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है. So it is always we pay off the debt first and then we start building our corpus, right? हम अपने पैसे को बढ़ाने के लिए जुगत लगाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सेविंग करते हैं, एफडी करते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं. तो we start doing that only after we have paid off our debts. Similarly, in this book, first 12 chapters, we have actually paid off our debts. जो हमने पास्ट में ग्रैटिट्यूड्स नहीं दिए हुए, उन ग्रैटिट्यूड्स को जो ड्यू थे हमारी तरफ से, हमने उनको देने के लिए ये 12 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करी. चाहे वो हेल्थ था, चाहे वो रिलेशनशिप्स थे, चाहे वो मनी था, है ना, हमने ये सब पे किया ना. एंड पीपल हु सर्व्ड अस, एंड दिन में भी जैसे दिन की शुरुआत करी तो एक एक चीज को जिसको हमने छुआ उसके लिए gratitude दिया, right? So similarly, we have paid gratitude for the past and the present.
And why were we doing this? Because we wanted to build our future based on our dreams and desires. आप में से जितने लोगों ने सीक्रेट देखी है और जितने लोगों ने इस बुक की शुरुआत से ज्वाइन किया है, तो इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट और सेकंड डे आई हैड आस्क्ड एवरीबॉडी टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स. उनके क्या सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं. अगर आप कहो मैं तो 60 में हूं, मैं 70 में हूं या मैं 50s में हूं, मेरे क्या सपने? सपने सबके होते हैं, कहीं ना कहीं नीचे दबे हुए होते हैं. जब आप कॉलेज में थे, जब आप when you started working, you had some dreams, but because you could not achieve them, हमने उसको अंडर द कार्पेट डाल के भूल गए. ये नहीं है यार, मेरे कोई सपने ही नहीं है. बट हर एक के सपने हैं, और नहीं है तो आज भी आप सपने देख सकते हो. तो अगर आपने वो लिस्ट बनाई थी 10 ड्रीम्स की या 20 ड्रीम्स की या डिजायर्स की, सो टुडे इज द डे वी आर गोइंग टू रीविजिट देम. हमने पिछले 12 चैप्टर्स में उनके बारे में कोई बात नहीं करी. बट नाउ ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट जो 10 चैप्टर्स हैं, वो हम उसके ऊपर ही बात करने वाले. 8 to 10 चैप्टर्स हम सिर्फ उन ड्रीम्स एंड डिजायर्स के ऊपर ही बिल्ड करने वाले, कि उनको कैसे अचीव करें. कि पर्पस तो वही है, तभी तो हम इस प्रैक्टिस में हैं, because we want to fulfill our dreams and desires, right? Now there's Norman Vincent who's written, imagination is the magic carpet. हमने बचपन में वो अलादीन की कहानी देखी, हमने वो पिक्चर देखी. बाय द वे, मैंने वो पिक्चर देखी, मुझे बहुत मजा आया. बचपन में तो कहानियां पढ़ी थी, उड़ता हुआ कालीन एंड ऑल दैट, but never saw it, in movie form. When I saw Aladdin, and in that, there was a magic carpet. He used to just sit on it, और वो जहाँ चाहे वहां उड़ के चला जाता था. तो इसमें हम जो आज बात करने वाले हैं, that is about imagination. जब हम कुछ सोचते हैं, उसके बारे में इमेजिन करते हैं, तो हम एक मैजिक कारपेट पे बैठ जाते हैं. अब आप इमेजिन करो, आप यहाँ बैठे हो. बहुत बार होता है ना हमारे साथ, हम बैठे कहीं होते हैं और पहुंचे कहीं होते हैं. अब कभी आप देखो, कभी आप कथा कीर्तन में भी बैठे हो, तो बैठे हैं मंदिर में या गुरुद्वारे में होते हैं, दिमाग कहीं और जा रहा होता है, आप कहीं के कहीं पहुंचे हुए होते हो. मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है, आई एम जस्ट सिटिंग डूइंग समथिंग एंड सडनली आई एम इन सम अदर प्लेस. एंड आई गेट अमेज्ड ऑन माय ओन, ये कैसे होता है यार? बट होता है, बिकॉज वी आर इमेजिनिंग दैट. For example, if I'm sitting here with you right now, I'm talking to Meena ji, I'm talking to Basanta, I'm talking to Shabana ji, but at the same time, I can be in New York also, because I have seen that place. तो मुझे मालूम है कौन सी रोड है, कहाँ पे सिफोरा है, कहाँ पे गैप है, कहाँ पर वो टाइम स्क्वायर पे वो जो बिल बोर्ड लगे, जो हमेशा चेंज होते रहते हैं लाइट्स के साथ. एंड it's like a videos and all which is happening. And I also know the lanes में कहाँ पर theaters हैं, and where is the metro station, and how's people walking with coffee in their hands, and I can imagine it because I've been there. तो मैं इसी वक्त टाइम स्क्वायर पे हो सकती हूँ कि नहीं? क्यों शबाना, हो सकती हूँ कि नहीं? आप कहीं भी जाना चाहें वक्त, you can imagine. Minutest of detail you can imagine and be there. Yes. Why do we have to do the imagination? For our dreams. Because imagination में और reality में जो feelings generate होती है ना, उसमें कोई difference नहीं होता. And the other thing is, our brain understands only pictures. उसको words नहीं समझ आते हैं. हम जब words भी बोलते हैं तो वो उसकी picture बनाता है. If I say elephant, you will immediately think of an elephant. Picture आएगी उसकी. If I say stars, you will immediately think of a black sky and stars टिमटिमा रहे हैं उसमें. Because our brain only understands pictures. तो जब हम imagine करते हैं, so our brain doesn't understand कि real में हो रहा है या imagination है. So if you remember Secret movie, उसमें वो बताते हैं ना, वो motor something, I'm forgetting the name of that technology they use, जिसमें एथलीट को वो सिर्फ वो लगा के उसके ब्रेन में एंड ऑल,
ask him to imagine that he's running on the track. And उसके जो भी vibrations थी या जो उसके जो भी trigger हो रहे थे, it was exactly like he was actually running on the track. So there's no difference in that. इसीलिए imagination works wonders in creating manifestations of whatever you want. अगर आपको कुछ manifest करना है, अगर आपको कुछ अपनी life में चाहिए, the dream and desires you want to fulfill, you have to start imagining to the minutest detail कि उसको आप किस तरह से experience करें. For example, you want to buy a car. अब मान लीजिए आपको कोई एक particular car पसंद है. For example, Mercedes. एंड मर्सिडीज की जो नया मॉडल आया आपको वो वाला मॉडल पसंद है और उसका कौन सा कलर पसंद है. नाउ व्हेन यू आर इमेजिनिंग दैट यू एक्चुअली फील द सरफेस ऑफ द कार. आप उसको टच करके देख रहे हो, फिर आप उसकी गाड़ी खोल रहे हो, खोल के आप अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हो. यू फील द सीट, द कंफर्ट ऑफ द सीट. यू लुक एट द डैशबोर्ड. आपको एक एक बटन दिखाई दे रहा है, वहां पे एक एक चीज दिखाई दे रही है. And then you switch on, you switch on the ignition and you start playing the music and you're driving. Your hands are on the steering wheel. You can feel your hands on the steering wheel. And you're just driving through the road and it's so smooth. Music itna badhiya chal raha hai. And then you remember, अरे मेरे पास तो sunroof भी है. इतना अच्छा मौसम है. And you switch on the button and switch, वो रूफ ओपन हो जाती है. एंड वहां से भी हवा आ रही है. एंड यू जस्ट एंजॉयिंग द ड्राइव. और जो नई गाड़ी में वो लेदर अपहोल्स्ट्री की स्मेल है, वो स्मेल आ रही है आपको. एंड यू जस्ट एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट. दैट इज हाउ यू सपोज्ड टू इमेजिन इट. बिकॉज व्हेन यू इमेजिन इट लाइक दिस, व्हाट हैपेंस? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज like attracts like. And it is only the feeling, which is an energy which goes in the universe and attracts the same thing into your life. जब इस तरह से आप imagine करते हो तो वो चीज आपकी लाइफ में आती है, because law of attraction is working all the time, right? So this is how you're supposed to practice your gratitude, because when you are doing this imagination, you are feeling happy, you are feeling grateful for it that you've received it. Now, जो principle है ना इस book का, which says whoever has gratitude for जो भी चीज है उसके लिए right now will receive that. Yeah, and whoever does not have gratitude for whatever right now, whatever he or she has will also be taken away. ये हमने हर चैप्टर में पढ़ा है. जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड इस वक्त दे रहे हो, एज इफ इट इज ऑलरेडी देयर, विल कम इनटू योर लाइफ. और अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो तो जो है वो भी चला जाएगा. ये होता है ना हमारे साथ, हमारी लाइफ में हर जगह हुआ है. अगर आप अपनी हेल्थ को ही देख लो, तो जिस भी चीज के लिए आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, मीन्स यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती. चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है. इवन इन रिलेशनशिप, when you start taking people for granted, the relationship starts deteriorating. Yeah. So similarly, if you're giving gratitude for the dreams you want to achieve in your life and you're imagining about it, that is what you will attract into your life. Yeah. So what is it that you need in your life? क्या है ऐसा जो आपको most needed है इस वक्त पे लाइफ में? अगर आपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स नहीं लिखे हैं, नो इश्यूज, वी आर गोइंग टू रीराइट इट. और अगर आपने लिखे हुए हैं तो भी हम उसको रीराइट करने वाले. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट 10 ड्रीम्स एंड डिजायर्स व्हिच यू वांट राइट नाउ. इफ यू हैव अ notebook up and pen, you can write it right now, or you can just think about it right now and write it later, right? So these 10 things can be from different areas of your life. आपको हेल्थ में कुछ चाहिए. For example, you want your diabetes or your HbA1c to be normal, or you want your cholesterol to be normal, or if you want in your career you want a particular
promotion, or in relationship you want a romantic relationship, or you want that your relationship with your father or your sibling becomes better, you know. And money wise, if you want X amount of money to receive, or if you want to travel, where do you want to travel? Like if you want to travel to say Spain, but जब ये लिखोगे ना, you have to be very specific. अगर आपको घर चाहिए और आपको मान लो आपने ट्रैवल करना है टू स्पेन, so which airlines will you travel? For how many days will you travel? Are you going to travel first class, business class, or economy? You have to think about all these things. आप कौन कौन से शहरों में रहने वाले हो, कितने कितने दिन, कौन से होटल में ठहरने वाले हो, कौन कौन से आप जैसे वो क्या है टोमेटियन ऐसे करके एक है ना वहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं वो लोग, तो आप वो वाला अटेंड करने जा रहे हो या आप बीच पे जा रहे हो, तो यू हैव टू जस्ट इमेजिन ईच एंड एवरीथिंग. आप इमेजिन करोगे तभी तो लिख पाओगे ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ट्रैवल बाय बिजनेस क्लास, which airlines you want to travel? Okay, so if you're traveling by, for example, if you're traveling by कौन सी कहें, कोई भी एक ले लो यार, जो भी अच्छी हो, जो उस तरफ से जाती हो. So if you just pick one airlines and you imagine that you're traveling by business class, and you're just imagining business class में कितना comfort है, seat is so comfortable, you can recline, you can, you know, and you're getting a special treatment by the air hostess. She comes with a menu card and asks you, what would you like to have? And you're feeling like a, you know, I'm like a king or a queen. या कितना अच्छा लग रहा है. And then you have screen and you can watch whatever you want to watch, and you have your, you know, personal screen, you have your headphones, and you're just enjoying. You're given slippers, you're given you know, if it's a long flight, then you they generally give the pajamas also to wear, and toiletries ka pura milta hai and all. So you're enjoying each and everything. You're opening that toiletry bag and looking at, wow, this is so nice, itna sundar sa hai, itni अच्छे brand ka hai and all. You're just enjoying everything. So you have to actually feel it. तो ये feel करते हुए आपने ये सब लिखना है. Yeah. So when you're writing all these dreams, how are you supposed to write? That I will tell you in a while. But you can pick 10 different dreams and desires from different areas of your life, or you can pick it from one area of your life itself. For example, health को ही ले लेते हैं, because health आजकल paramount है सबके लिए. तो हेल्थ के बारे में अगर हम लेते हैं, तो हेल्थ के 10 things you can take. You want to achieve your ideal weight, you want to have your HbA1c under, you know, normal range, you want to have your cholesterol under normal rate, you want to have more energy, you want to have agility of mind, you want to have more flexibility. Yeah. So you can actually look at all the different things you want in your health area. तो आप 10 चीजें अपने हेल्थ के बारे में भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी लिख सकते हैं, और यू कैन पिक इट फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड पिक 10 थिंग्स, बट बी वेरी स्पेसिफिक. क्योंकि इट इज लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर टू द यूनिवर्स ना. आपने ये सुना है, सीक्रेट में भी बोलते हैं ना, इट्स लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन यूनिवर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मनीष जी आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने उसको बोला कि मेन्यू कार्ड लेके आया, वो आपने बोला छोड़ ये रहने दे, तू ना ऐसे कर, कोई भी अच्छा सा वेजिटेरियन तुम्हारा बेस्ट है ना वो लेके आ जा. नाउ ही गेट्स अ बिग प्लेटर, बिकॉज उसका तो जो सबसे अच्छा है उसमें तो महाराजा थाली है. एंड ही ब्रिंग्स दैट सच बिग थाली फॉर यू. या एंड उसमें जो सब्जियां हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे घिया पसंद नहीं है, उसमें घिया है और उसमें घिया है और उसमें तली हुई पूड़ियां हैं, एंड आई डोंट वांट टू ईट फ्राइड. या सो ही विल गेट व्हाटएवर ही फील्स इज द बेस्ट. या बट अनलेस यू टेल हिम, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बोला, भाई मुझे ना एक तो मुझे तू ला दे टोमेटो सूप ला दे, बिल्कुल हॉट, पाइपिंग हॉट होना चाहिए है, और उसके साथ ला दे मुझे एक गार्लिक ब्रेड. ठीक है, और खाने में मुझे चाहिए पनीर टिक्का चाहिए, और मुझे कुछ ज्यादा नहीं खाना है, तो बस ऐसे कर, पनीर टिक्का के साथ ना मुझे तू एक नान ला दे, बस मेरा हो जाएगा इसमें. ठीक है.
So he will get specifically that. Now, when you say piping hot tomato soup, he will, while bringing it, while cooking it, will be very particular about it कि आपने piping hot बोला है, वो lukewarm नहीं लेके आएगा, because आपने specific उसको instructions दिए हैं. और अगर आपने नान के लिए भी बोला या रोटी के लिए भी बोला कि मुझे क्रिस्पी चाहिए या मुझे बटर ऑन द नान चाहिए, तो वो वैसे ही लेके आएगा, because that is how we are placing the order on that person, on the restaurant. But जब हम उसको बोलते हैं कि भैया तेरा जो सबसे अच्छा वो ले आ, तो वो तो कुछ भी लाएगा. So specifically when we are writing our dreams and desires, we need to be very specific, because हम यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई मुझे ये चाहिए. For example, जैसे मैंने गाड़ी की बात बोली, similarly if you want a house, now what kind of a house do you want? You want a row house? You want an apartment? अभी कौन से एरिया में चाहिए? आप कहाँ रहते हैं मनीष जी? Now ma'am, I'm in Noida. Okay, so आप नोएडा में रहते हैं. अब नोएडा में सेक्टर 60 में चाहिए कि 120 में चाहिए? Agree open. ठीक है 16. हाँ, मतलब जिसमें भी चाहिए. Yeah, you have to be, आप देखेंगे ना, मुझे 15 पसंद है, 15 में बड़े अच्छे घर बने हुए हैं, या अब जो नया एक्सप्रेसवे में बन रहे हैं अपार्टमेंट्स, वो अपार्टमेंट्स बड़े अच्छे हैं, you know, the gated communities with everything within. So I would prefer that. वहाँ पे सिक्योरिटी भी है, तो मुझे वहाँ पे चाहिए. या अब आपको कौन सा फ्लोर चाहिए और कौन सी साइड चाहिए, आपको पूल साइड चाहिए या आपको रोड साइड चाहिए. So you have to be very specific. कौन सा फ्लोर चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, उसमें कितने टॉयलेट्स चाहिए, आपको बालकनी चाहिए कि नहीं चाहिए. So when you are talking about all these things, you are very clear about it कि आपको चाहिए क्या. अब ये क्लैरिटी कब आती है, जब आप सोचते हो इसके बारे में, when you are imagining about it. That is why this chapter is about imagination. When you imagine about things, you go to this, you know, minutest detail about it. कि मुझे बाथरूम का फेस किस तरफ चाहिए, मुझे वास्तु के हिसाब से चाहिए, है ना. कई लोग वास्तु के हिसाब से देखते हैं. और मुझे सनराइजिंग चाहिए, सर्दियां हैं तो मुझे उधर से धूप आनी चाहिए, राइट. तो ये सब चीजें हम सोचते कब हैं, जब हम इसके बारे में इमेजिन करते हैं या हम उस घर को जाके देखते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू प्लेस द ऑर्डर ऑन द यूनिवर्स. तो हमने वो जो लिस्ट बनानी है अब 10 ड्रीम्स की, चाहे वो डिफरेंट एरियाज के हैं, चाहे वो एक ही एरिया में से 10 चीजें हम लिख रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. और उसको लिखना कैसे है, पहले हमने जब लिखा था तो वी जनरली राइट आई वांट दिस. जब हम कुछ लिखते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, आई वांट अ हाउस और आई वांट अ कार. हम चलो उसको स्पेसिफिक भी कर देंगे, बट आई वांट करके लिखते हैं. Today we are going to rewrite it, imagining as we have already received it. Because इस बुक में पूरा टाइम हमें यही सिखाया गया कि उसको इमेजिन ऐसे करना है कि ऑलरेडी मिल चुका है हमें, एंड देन वो फीलिंग को जनरेट करते हुए आपने थैंक यू बोलना है. सो व्हेन यू आर राइटिंग, यू आर सपोज्ड टू राइट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर, you know, and then that house, whichever house you wanted, my house in sector this thing with 3 bedroom and all, whatever you want to write. Or thank you, thank you, thank you for, but what are you supposed to write? You're supposed to write the end result. For example, a student wants to get an admission into a college, a particular college. या अब उस कॉलेज पे एंट्री करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा. There must be some cut-off time, this thing, percentage, है ना. And that person, उसने अभी एग्जाम दिया नहीं है, but the child is writing, and thank you, thank you, thank you for my marks in the exams to get me admission and in this college. So he or she is already saying thank you कि मुझे इतने मार्क्स मिल गए कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गई है. Yeah, so thank you, thank you, thank you for my ideal body weight of so many kgs.
अगर मैं हेल्थ का एरिया है उसमें मैंने अपना वेट के बारे में लिखा है कि मुझे अपना आइडियल वेट जो है वो अटेन करना है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो एंड रिजल्ट क्या है, वो वेट जो मुझे अटेन करना है। सो इस तरह से हमने वो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को लिखना है। अब जब हमने 10 रोज के 10 ब्लेसिंग्स लिखे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन बाय द वे? उमा जी, नीलम, मीना जी, शबाना, आई थिंक राजविन वाज राइटिंग, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। जिसने भी वो 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखे हैं, देयर वाज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इट। याद है किसी को कैसे लिखने थे? किसी को याद है उसके 3 स्टेप्स क्या हैं? No worries. So number 1 was you're supposed to write 10 blessings. What are you grateful for? भगवान ने ऐसा आपको क्या क्या दिया हुआ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो? वो 10 चीजें लिखनी थी, और उसको लिखते टाइम आपने लिखना था आप ग्रेटफुल क्यों हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, इट इज कनेक्टिंग मी टू सो मेनी पीपल। So what is the reason why? Because it is connecting me to so many people. Yeah, for Zoom I can say that, right? So इसी तरह से हमने 10 अपनी चीजें लिखनी थी जिसके लिए हमने लिखना था why are we grateful for? Thank you, thank। उसके बाद हमने उसको हर एक को पढ़ना था। पढ़ने के बाद फील करते हुए हमने बोलना था थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैंने आप में से एक बार सबसे पूछा था, आपको मालूम है हम 3 बार क्यों बोलते हैं? And I said that we will be covering this in one of the chapters. So today is that chapter which is going to tell us why do we write it 3 times. जानना चाहते हैं नीलम जी? कोई जानना चाहता है? मनीष जी तो जानना चाहते हैं। Anybody else who wants to know हम 3 बार क्यों लिखते हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्यों बोलते हैं? किसी को इंटरेस्ट नहीं है? नहीं चाहते हैं। Okay. So when we say thank you 3 times, फर्स्ट टाइम जब हम थैंक यू बोलते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं ना, विदाउट मच फीलिंग्स। बट व्हेन वी से इट 3 टाइम्स, तो उसमें एक तो फोकस आ जाता है, दूसरा उसमें थोड़ी सी फीलिंग्स डीपन हो जाती हैं। सो दैट इज व्हाई वी से इट 3 टाइम्स, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई वी से इट 3 टाइम्स। 3 is a magical number of mathematics. It's a number of creation. 3 is a magical number of mathematics. It's a number of creation. तो अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करते हो तो उसके लिए भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। Similarly, to bring a child to this world, child is a third one, huh? Mother, father and child, तीनों चाहिए, है ना? So 3 is the number of creation. Anything when we create, it is created from number 3. तो जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और जितने भी लोग जो आपको ऐसी ट्रिक्स सिखाते हैं, दे ऑलवेज टेल यू टू राइट इट 3 टाइम्स 6 टाइम्स 9 टाइम्स, 369 करके बताते हैं आप। So 3 is a number of creation. So when you say thank you thank you thank you, you are starting a creative process of that dream coming into your life. आप उसका क्रिएटिव प्रोसेस जो है उसको क्रिएट कर रहे हो कि उस ड्रीम को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपने वो क्रिएशन स्टार्ट कर दिया। सो जब भी आप कुछ करते हैं ना तो उसको 3 बार, जब भी कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं तो 3 बार बोल लिया करो। सो इवन व्हेन यू डू योर अफर्मेशंस, स्टार्ट विथ 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स। एक टाइम पे बैठकर 3 बार जरूर बोला करो, because that will start the creative process of that in our subconscious mind. तो ये जो इमेजिनेशन भी करनी है ना, इमेजिनेशन करने का भी जब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ, सो आई ऑलवेज से दैट जब भी आप ये इमेजिनेशन करते हो ना, यू शुड डू इट फॉर 7 मिनट्स। आप अपने टाइमर सेट करके 7 मिनट्स
because that is the time by उस टाइम तक आपका जो फीलिंग्स हैं वो डीपर चली जाती हैं. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. और हमारी एनर्जी जो है वो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ ही यूनिवर्स में जाती है. तो जब आप 7 मिनट्स करते हो तो आपका जो उसकी डेप्थ है फीलिंग की वो बढ़ जाती है. So you should do it for 7 minutes, and the best time to do is the moment you get up in the morning. अपने बेड से उठने से पहले कर सकते हैं आप. जैसे ही आंखें खोलें आप just imagine that and just before going to bed. And you know the reason why we do it. आपके तो इतने सारे सेशंस होते रहते हैं, so you know कि जब आप सोने से पहले करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात काम करता है. एंड व्हेन यू गेट अप एंड अबाउट टू गेट अप, तो अब ना आप पूरे जागे हो ना पूरे सोए हो, उस स्टेट ऑफ माइंड में जब होते हो तो उस टाइम पे वो बहुत इफेक्टिव होता है. सो व्हेनेवर यू डूइंग द इमेजिनेशन, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसकी इमेजिनेशन को स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एवरी सिंगल डे. एंड उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के आप उसके बारे में लिखेंगे. दैट इज अनदर थिंग. नाउ हमें अपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को, अगर हमें अपनी ये चीजों को, अपने जो भी हम चाहते हैं ड्रीम्स एंड डिजायर्स को लाइफ में अट्रैक्ट करना है, वी वांट देम टू कम फास्टर टू अस, हमने उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन इंक्रीज द depth of our feelings. We can increase the क्या बोलते हैं उसको, हम एक्सेंचुएट कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड को, उसको मोमेंटम दे सकते हैं. Manifestation, is it? Increase the manifestation. Yes, to manifest it faster, we can actually start giving more power. We can increase the power of gratitude. हम ग्रैटिट्यूड को सैचुरेट कर सकते हैं, जैसे हमने मॉर्निंग वाले सेशन में किया ना, दैट व्हेन यू मैजिकल मॉर्निंग में, दैट फ्रॉम द मोमेंट यू गेट अप टिल द टाइम यू गेट रेडी, आप जिस भी चीज को छू रहे हो उसको आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो. व्हाट वर वी डूइंग? वी वर सैचुरेटिंग द ग्रैटिट्यूड so that throughout the day we have a wonderful day and we are full of energy and happiness and joy because we were saturating the gratitude. Now to fulfill our dreams and desires, we again want to saturate the gratitude कि हमें जल्दी से जल्दी मिले, उसको पावर दे दें हम, तो saturate करने के लिए उसको, there are 3 questions you are supposed to ask for each and every dream and desire you are writing, which will help you to increase the depth of your feeling. Gratitude की feeling को deepen करने के लिए आपने हर एक dream and desire के लिए 3 questions पूछने हैं. What are these questions? If you want, you can write it down or I will share it in the group also. So number 1 is, when you received it, because see, when you are doing the imagination, you're imagining you've already received it, right? So when you receive it, what did you feel? आपके emotions क्या थे उस time? How did you feel at that moment? For example, when the student got, imagine that that person has got X number of percentage of marks. तो जैसे ही उसको पता चला कि उसको ये उसकी मार्कशीट आ गई या उसको दिखाई दिया अपना रिजल्ट कि मुझे इतने मार्क्स मिले, तो उसको क्या महसूस हुआ? जॉय महसूस हुआ, एक्साइटमेंट हुआ, या लॉट ऑफ क्या कह सकते हैं उसको, यूफोरिक हो गया, अरे क्या बात है, मेरे तो आ गए इतने मार्क्स, and that person is feeling like that. So what you're supposed to write is, how did you feel at that moment when you received your dream and desire? Number 2 is, whom did you tell and how did you tell that? सबसे पहले किसको बताया? अब जैसे मान लो हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट के जैसे ही मार्क्स आए, उसको जैसे ही दिखाई दिया कि मैंने तो इतना परसेंटेज मुझे मार्क्स आ गए, तो उसने सबसे पहले किसको बताया? कुड बी बेस्ट फ्रेंड, और उसको जाके हक किया और मे बी हाई फाई दिया, देख तेरे भी इतने आ गए, मेरे भी आ गए. So who was the first person you shared it with and how did you do it? Maybe that person, that student went home
सबसे पहले घर गया, मम्मी को बताना सबसे पहले, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, मम्मी को बताना। एंड ही और शी गोज होम, एंड जब जाते ही मम्मी ने दरवाजा खोला तो मम्मी को जोर से कस के हग करके बोला, मम्मा यू नो व्हाट, मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, यू नो। एंड मे बी द मोमेंट उसको, जैसे मैं इमोशंस की बात करती हूँ, उसने क्या फील किया, मे बी दैट पर्सन यू जस्ट जंप्ड इन द एयर, हाथ ऊपर करके वाओ आई मेड इट, यू नेवर नो उसने क्या किया उस टाइम पे, या आपने उस टाइम पे कैसे महसूस किया जब आपको आपका सपना मिला। सबसे पहले किसको बताया, मे बी उसने अपने टीचर को बताया हो, जो उसका टीचर बहुत अच्छा उसका हेल्प किया हो, जिसने उसको, मे बी he walked up to that teacher and said के thank you so much sir, I'm so happy I've got my marks, अब तो मुझे मेरे फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा एंड ऑल, नेवर नो। तो उस टाइम पे किसको सबसे पहले बताया और कैसे बताया। हम क्या कर रहे हैं अभी, फर्स्ट उसकी अपनी फीलिंग, सेकंड जब उसने शेयर किया तो क्या फील किया और किस तरह से एक्सप्रेस किया। तो हम क्या कर रहे हैं, उस फीलिंग को डीपर ले जा रहे हैं। नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि उसने सबसे पहले क्या किया। जैसे मैंने बोला, मे बी दैट पर्सन jumped in the air and said wow I made it, you know, maybe that person went straight to गुरुद्वारा और मंदिर and माथा टेक के बोला, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मैंने मेरे के नंबर्स आ गए। क्या मालूम सबसे पहले क्या किया। So these are the 3 questions which you are supposed to ask yourself while writing those 10 things, जो आपके 10 ड्रीम्स है, उसके लिए आपने हर एक के लिए 3 क्वेश्चंस पूछने। What will it do? It will accentuate your gratitude. आपके ग्रेटिट्यूड को वो डेप्थ देगा और उसको सैचुरेट करेगा, किस लिए, ताकि आपका वो सपना आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। We are doing all this practice because we want our dreams and desires to be fulfilled ASAP। चाहते तो हम यही है ना, कि जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। अगर हमें सच में उनको जल्दी से जल्दी पूरे करना, तो हमें ये प्रैक्टिस, अगर हम इस प्रैक्टिस को आज से शुरू करते हैं, तो ये प्रैक्टिस, व्हेन यू सिट डाउन एंड डू दिस प्रैक्टिस, यू आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। एक एक के ऊपर आपने 10 लिख लीजिए, 3 चाहिए आपको 3 लिख लीजिए, 5 चाहिए 5 लिख लीजिए। जो भी आपके, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इट दैट यू नीड मोस्ट एट दिस मोमेंट, राइट नाउ क्या चाहिए आपको। हो सकता है 3 सपने हो सकता है 5 हो, 10 तक लिख लो, 10 तक लिख लो। कौन कौन से एरियाज में वो लिख लो। एक ही एरिया में 10 चाहिए कि 5 डिफरेंट एरिया में 2-2 चाहिए, या 10 एरिया में 1-1 चाहिए, दैट इज अप टू यू। एंड देन उनको लिखने के बाद आपने हर एक के ऊपर ये 3 क्वेश्चंस पूछने। और मैंने क्या बोला आप पहले, कि एक तो आपने उसको बड़ी स्पेसिफिकली लिखना है, टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल लिखना है। एंड उसको लिखना कैसे है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिख के, टू स्टार्ट द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ द ड्रीम गेटिंग फुलफिल्ड। और उसके बाद आपने लिखना है एंड रिजल्ट, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाउस चाहिए नोएडा में, अगर आपको 16 सेक्टर में चाहिए, आपको एक बंगलो चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल होम एट सेक्टर 16, a 3 bedroom home at sector 16। बाकी डिटेल्स आपने जो लिखी है वो तो लिखी ही हैं, बट एंड रिजल्ट क्या है, सेक्टर 16 में मुझे 3 बेडरूम का एक मकान चाहिए, प्राइवेट हाउस चाहिए, तो आपने वो लिख दिया। सिमिलरली आपको अपने हेल्थ के बारे में लिखना है, तो हेल्थ के बारे में लिख दीजिए, आई थैंक यू फॉर माय कोलेस्ट्रॉल रीडिंग बीइंग इन द नॉर्मल रेंज, दैट इज व्हाट यू वांट। तो इसी तरह से आपने वो लिखना है। और फिर लिखने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो घर मिल जाता है, तो आपको जैसे ही वो घर मिला, आपको घर की चाबियां मिली, हाउ डिड यू फील अबाउट इट, क्या फीलिंग्स आई थी, इमोशंस क्या आए थे उस टाइम पे।
हो सकता है खुशी में आंखों में आंसू आ गए। एंड सबसे पहले किसको बताया था? अपनी वाइफ को बताया था कि चाबियां मिल गई हैं, और फोन पे बताया था। हाउ डिड यू कन्वे दैट? फोन पे बताया, मिल के बताया, या वो आपके साथ में ही थी और आपने उनका हाथ पकड़ के जोर से दबाया कि मिल गया घर? यू नो, सो वी डू दीज थिंग्स बट वी डोंट इवन पे एनी अटेंशन टू इट. But when we are doing these 3 questions के answer, we are actually saturating ourselves with the feeling of gratitude. किस लिए? ताकि हमारा सपना सच में साकार हो जाए, बिकॉज हमने क्रिएटिव प्रोसेस तो शुरू कर ही दिया है. या सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू टुडेज असाइनमेंट. आपने अपने 10 सपने लिखने हैं, और उनको कैसे लिखना है मैंने बता ही दिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार लिख के क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट करके फिर फॉर करके, और जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए वो लिखना है, और उसके सैचुरेट करने के लिए ग्रैटिट्यूड के साथ आस्क दीज 3 क्वेश्चंस. इमेजिनेशन करते टाइम आपने माइन्यूटेस्ट डिटेल के बारे में सोचना है, और फिर उसके बारे में लिखना है. पहले सोचना है, इमेजिन करना है, फिर लिखना है. सो इट इज गोइंग टू टेक लिटिल टाइम. सो अपने सपनों के लिए इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं ना. तो सिट डाउन एट अ प्लेस, थिंक अबाउट इट, इमेजिन करो. आपको गाड़ी लेनी है तो उस गाड़ी को इमेजिन करो, उसका कलर क्या है ना, उसकी कौन सा वाला वेरिएंट है, अंदर से कैसी है, स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रख के आप चला रहे हो तो कैसा मजा आ रहा है, म्यूजिक चल रहा है, हवा चल रही है, और सस्पेंशन इतना बढ़िया है कि गड्ढों में भी पता नहीं चल रहा. फ्लाई उसके ऊपर क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी स्मूथ मक्खन की तरह निकल रही है, एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग इट. और ऊपर से अगर रूफ खुली है तो आपको ऊपर से आसमान में बादल दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर वाइट वाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के. सो यू डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के. यू कैन गो टू एनी लेंथ टू इमेजिन इट. वो इमेजिन करने के बाद फिर आपने लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई, जो भी गाड़ी है उसका, उसके बारे में, राइट. एंड फिर 3 क्वेश्चंस पूछने. तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट्स तो हम ये बुक पढ़ी इसीलिए रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए जिंदगी जो नहीं है अभी हमारे पास. या सो दिस इज अबाउट टुडेज चैप्टर. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं. एंड आई आल्सो वुड लाइक टू शेयर अबाउट माय प्रोग्राम व्हिच आई एम डूइंग. पर अभी आप किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो कह सकते हैं बिफोर आई शेयर दैट. Hello, Jagjit ji. या राजवीर. I have a dream. I have a dream of fulfilling for Miss Amazing Malaysia. I went for photo shoot. I went for self-defense workshop. I went for workshop. So there were a lot of things. Now I keep manifesting. I keep manifesting that I must win Miss Amazing Malaysia. I'm going to be well known. I'm going to be a very good trainer, very good, and I manifest myself to not work perfectly, but at least to be mobile so that I can be independent. So how do you manifest? How do you keep manifesting it every day? Yeah, so Rajun, I did not get your question very clearly, but what I could make out was that you want to know how to manifest every day whatever you are dreaming of, right? And manifest is one thing, but maintaining the manifestation, how to maintain the manifestation. Yeah, so it needs practice, Rajvin, because if you keep practicing it every single day, like when I'm talking about imagination, if you're imagining it every single day, you can keep it, in existence. The other way of keeping it in existence is making a vision board. You heard about vision board? Yeah, vision board means
I am amazing. I'm No, going no, to no. I'll just tell you how to make a vision board. Vision board is like a like board. a motto. No, no, no. It's like a board. It can be that pin-up board which we have in schools and colleges. Pin-up board. Yeah. So you can get a pin-up board, and whatever you want to manifest. For example, you want to manifest. For example, if just tell me what you want to manifest. Tell me one or two. Win the crown. Win the win- crown. Okay. Okay. Win the main crown, and also be the best in my career. Okay, so let's focus on winning the crown. So somebody must have won that crown in the past. Yes. You have a picture of the crown. Yes. Yeah. So these days everything is possible on the internet. So you can put your picture and put the crown on your face, on your head. Yeah, put a crown on your head. Take a picture of that. Get it morphed. You can get it done on lots of apps are available. So take a picture of that crown and put your picture there and take a printout of that and clip it on that board. Are you there, Rajvin? Yeah. Clip it on the board. Or you can just put only that crown and take a picture of yours, whichever is there with you, and just put that picture and put that crown thing and put a pin on it as if you are wearing that crown. And on top of that board, write thank you, thank you, thank you 3 times in bold letters in red color. Write it on that, and whatever you want to manifest, take a picture of that and put it. If you want to be the best trainer, yeah. So in the net, on net, you will find a lot of pictures of lots of trainers giving training, and there's a hall full of people. So you can take one of those pictures and just change the head of that person's photograph and put your photographs there and put it on the vision board and see it every day. Every time you're crossing it, keep it in a place where you can see it every day, wherever you are sitting. How about manifesting to push the electric wheelchair also? Sorry? Manifesting to push the electric wheelchair also. You can do that also. That you can have to just imagine. Just imagine that. So whatever you want to manifest, keep it alive and in existence in front of you most of the time during the day. So every time you're crossing it, every time you're seeing it, you can put it on your screen also. You can put it on your mobile screen or your laptop screen also. You can make a vision board on your as a wallpaper also, so that every time you open your laptop, you see that. The only thing is keep it in existence, because what we do is we are imagining at one time and then we forget about it. Yes. So the more it is in front of you, the more you are thinking about it, the more you are sending the vibrations for that. Yes. Yeah. So that is how you're supposed to do. I hope it answers your question. Yes. Thank you. Anybody else has anything to say? If I need help, I'll call you direct. Please, you're more than welcome to call. Anybody can call me anytime. I'm always available. Yeah. Anybody else has any question? Uma ji, Meena, Vasant ji, Neelam ji. Okay, so friends, I am doing a 3 days challenge on Jagjit ji, relationship. Good morning. Good morning. Yeah, I just wanted to find out, when you're imagining, are you writing it or are you just actually imagining only? You are imagining it. After imagining, you're writing it. First, you have to just imagine. Kaisa ghar chahiye, kaisa, maybe you want a life partner for your daughter, or maybe you want something. Just imagine that. कि क्या क्या चाहिए मुझे, and then write it. Because सीधा लिखोगे तो वो, because आंखें बंद करके जो इमेजिनेशन होती है ना, वो या आंखें खोल के जब आप सोच रहे होते हो, वो लिखते टाइम आप उसको लिख सकते हो, पर पहले इमेजिन करना है. या So पहले, I mean, imagine करें फिर लिख भी सकते हैं.
हाँ हाँ, लिखना तो है ही है. थैंक यू तो लिख के ही करोगे ना. So thank you 3 times when you write. वो आपने लिखना ही है, उसमें एंड रिजल्ट लिखना है, एंड उसके बाद वो 3 क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने ही है. That is to be written. Feel 3 करके. questions. Sorry, I didn't get that. So for each dream and desire, when you have written thank you, उसके बाद to accentuate or to saturate the gratitude's power. पावर होगी तभी तो हम किसी चीज को अपने पास ला सकेंगे ना. तो उस पावर को जनरेट करने के लिए या उस पावर को बढ़ाने के लिए, उसको वेलोसिटी देने के लिए, वी आर गोइंग टू आस्क 3 क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स फॉर ईच वन ऑफ आवर ड्रीम्स. सो नंबर 1 इज कि मेरा वो जो सपना पूरा हो गया, बिकॉज हम हमेशा यही सोच रहे हैं कि जो कुछ हम चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हो गया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गिविंग ग्रैटिट्यूड, राइट. सो अगर मेरा वो सपना पूरा हो गया है, उस टाइम पे हाउ डिड आई फील, व्हाट वाज माय इमोशंस, दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज सबसे पहले किसको बताया और कैसे बताया. आप ये सब इमेजिन कर रहे हो कि आपको वो घर मिल गया, आपने सबसे पहले किसको बताया. आपने फोन करके अपनी मदर इन लॉ को बताया, या अपनी मदर को बताया, या अपने हस्बैंड को बताया, या अपने बच्चे को बताया. किसको बताया और कैसे बताया. फोन करके बताया, या घर जाके बताया, या हक करके बताया, या तो आपने कैसे बताया और किसको बताया. नंबर 3 इज व्हाट डिड यू डू. जैसे पता चला सबसे पहले क्या किया. परमात्मा को थैंक यू बोला. कई लोग उसी टाइम पे मंदिर चले जाते हैं, या कि कोई लोग किसी को हक करते हैं, कोई लोग हवा में वाओ आई हैव डन इट, तो या किसी लोगों के आंखों में इतनी खुशी होती है कि आंखों में से आंसू टपक पड़ते हैं खुशी से. उस टाइम पे आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू आंसर फॉर ईच वन ऑफ योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, सो दैट आप अपने ग्रेटिट्यूड को इतना सराबोर कर लो, इतनी पावर, वैसे रॉकेट लगा दो उसको, कि बस उसके बाद तो आना ही आना है आपके पास. तो उस तरह से इसके ऊपर हमने काम किया. Yeah, does it answer your question, Uma? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Okay, friends. So I just wanted to share. I am doing a 3 days relationship challenge on 15, 16 and 17. शाम को 7:30 बजे आधे घंटे का लाइव सेशन है, जिसमें I will be talking about हमारे रिश्तों में अगर हम उनको बेटर करना चाहते हैं तो ऐसी कौन-कौन से ट्रिक्स हैं या टेक्निक्स हैं, या ऐसी क्या काम हम कर सकते हैं जिससे हमारा रिश्ता बेहतर हो जाए. So 3 days I'll be sharing 3 different things how you can improve your relationship, and सिर्फ आधे घंटे के लिए हम मिलेंगे, और उसमें मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी, कुछ शायद आपसे वहीं पे भी काम करवाऊंगी in the class, in the session itself, so that you know how to practice those things in your life. So it's a very small challenge only for 3 days. और क्योंकि रिश्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिश्ते ही हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं. एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हमारी सारी खुशियां छीन लेता है, हमारी हेल्थ खराब कर देता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है, हमारी बाकी के रिश्ते खराब कर देता है. तो अगर हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए I am doing a 3 days challenge, and I'm inviting all of you to join, and I am guaranteeing you that you will enjoy it, because बहुत मस्ती भी आने वाली है, और बहुत कुछ जो कुछ मैंने सीखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. ज्ञान नहीं दूंगी सिर्फ, कि सिर्फ ज्ञान ये सुन लिया और उसके बाद हाँ जी हो गया, सुन लिया पता चला, हाँ ऐसा तो मैंने बहुत बार सुना है. नो, I really want you to get those tools in your life so that you know आपको लाइफ में कभी भी कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत, तो आप उनमें से कोई भी एक चीज अप्लाई करके अपने उस रिलेशनशिप को बेटर कर पाए. So I've already shared the flyer in the group. I'll share it again after the session. So anybody who wants to join can DM me, and the fees is
399. So, and you can Paytm me on my number, which is 8800750020. And otherwise, you can DM me if you want to have more details about it. It's going to be a Zoom session, 7:30, 15, 16, 17, 7:30 p.m. evening mein hai, right? So whoever is interested can get in touch with me, and I would be more than happy to have more and more people getting benefit out of it. Yeah. So thank you so much. Thank you, Shabana, for letting me share this also on that plot on this platform. And thank you for giving me the opportunity to share magic practices with all of you. Thank you so much.